Everyone is having their handbooks. So you need to pay attention. The topic is altogether new. We have finished the dispersion of white light in the previous class. Now we are starting with the next topic, which is atmospheric refraction. Everyone is aware what is refraction. Refraction is the change in the direction of the light when light moves from one medium to Another meeting. of different density or of same density. Different density. Different density. If the two medias are of same density, will the refraction occur? No, the No, refraction ma'am. cannot occur. Ma'am. Why does the refraction occur? Because the speed of light is different in different mediums. Are we getting this? Speed of light is different in different mediums. That is why we are able to see the effect of refraction. Let us now connect the two words together. What are these two words? Atmospheric refraction. What are these two words? Atmospheric refraction. अगर हम atmospheric refraction की बात करते हैं, it simply means the refraction is occurring within the atmosphere. Refraction कहाँ पर हो रहा है? Within the atmosphere. So what must be there in the atmosphere that it is allowing the refraction? Different mediums. Different density. Different density. अब different density कैसे है? Let us compare the air layers in the atmosphere and two different regions above the sea level and high above in the atmosphere. तो जो above the sea level air होती है वो कैसी होती है बच्चा? It is highly denser. Why? Because it has more moisture. Because it has more moisture. और जो एयर हाई अबव इन द एटमॉस्फेयर होती है नियर द सन अगर हम बोलते हैं तो दैट इज हॉटर एयर. हॉटर एयर कैसी होती है? हमेशा लो डेंसिटी. Low density. Yes. हॉटर एयर कैसे होती है बच्चा? ऑलवेज ऑफ लो डेंसिटी. So within the atmosphere, we have the air layers of two different densities. One is the air layer of higher density, which is near the sea level, and one is the air layer of lower density, which is yes near the sun, Above. high above. ठीक है? At a high level. So the deviation of the light or the electromagnetic wave from a straight line as it passes through the atmosphere is known as atmospheric refraction. I hope everyone recalls well कि हम light को electromagnetic wave भी बोलते हैं because light can travel in vacuum. Light कहाँ travel कर सकती है? Vacuum में कर सकती है. तो refraction of light in the atmosphere. Temperature affects the air density. So cooler air layers are optically denser and the warmer air layers are optically rarer. अब आप ऑप्टिकली डेंसर और रेयर का मतलब समझते हो ना? डेंसिटी कम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So when it is a hotter air, it has only air particles. So it is rarer. And when it is a cooler air, along with the air, it is also having moisture, which makes it what? Which makes it yes. Denser. Which makes it denser. What happens to the light? The atmosphere contains air layers of varying optical density. So when light is traveling through these layers, what does it experience? It experiences a bending, that is refraction. So light rays change the direction. Light rays changes the direction as they pass through the layers of different temperatures. So layer of high temperature are optically rarer and layers of low temperature are Optically denser. denser. ये बात किस किस को क्लियर हो गई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों होता है एटमॉस्फेयर में? सो ड्यू टू दिस वी आर एबल टू सी मल्टीपल इफेक्ट्स हाई इन द स्काई. अर्नव अगर दिमाग इधर उधर कहीं पे भी गया आज थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर. सीधे बैठ जाओ. This is how the optical phenomenon like mirage and twinkling of stars appear. What is mirage? It occurs in desert areas. Yes, it is an illusion. What is it? It looks like there is water, but there is no water. So that is a mirage effect. And mirage effect is also due to refraction. We are able to see the twinkling of stars. We are living in metros, hardly we are able to see the stars, but the stars actually twinkle. Why does it twinkle? We'll come to know now. So there are multiple optical phenomena which takes place in the atmosphere due to which
phenomenon of light, refraction of Refracted. light. So atmosphere have different air layers. Atmosphere has different air layers. Atmosphere की जो air layers होती हैं वो denser भी होती हैं और rarer भी होती हैं. जो moisture वाली होती है near the sea level वो कैसी होती हैं? Denser. Denser. और जो hotter होती हैं वो कैसी होती हैं? Rarer. Right. So we are able to see the multiple effects. So one such effect is twinkling of stars. The stars seem higher than they actually are. So there are two positions, the actual position and the abstract position. So actual position नीचे होती है and how does the star looks like? Little above. Stars कैसे दिखते हैं? Little above. And why it is so? This is due to refraction. और refraction की वजह से ही we are also able to see the advanced sunrise and delayed sunset. जो ये advance होता है ना, we are able to see. Actually sunrise कब होता है? Say suppose my hand is representing the horizon. ठीक है? When sun is going to come above the horizon, then we say the sun has risen. ठीक है? So when the sun is exactly here, due to refraction, we are able to see it here. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आने में सन को 2 मिनट्स लगते हैं. तो जब सन होता यहाँ पर है बट दिखता कहाँ पर है? यहाँ पर. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एडवांस सनराइज. और जब सनसेट होता है सिमिलर फिनोमिनन. ठीक है? सनसेट क्या होता है? डिलेड सनसेट. तो सनसेट कब होगा? ये होराइजन है. जैसे ही सन होराइजन से नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे? सनसेट. बट जब सन इस पोजीशन पे है तब भी वो कैसा दिखता है? रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिखता है. तो इसलिए वो डिले भी कितनी देर का होता है? 2 मिनट्स का डिले होता है. विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है? विद अ डायग्राम. तो ये सारे इफेक्ट्स जो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एटमॉस्फेरिक Atmospheric refraction. Yes. Atmospheric refraction is responsible for many things which are happening high up in the sky. Sky blue दिख रहा है, यही responsible है. Stars twinkle कर रहे हैं, refraction responsible है. Planets twinkle क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भी refraction responsible है, right? और अगर हम ये बोल रहे हैं कि sunrise जल्दी हो गया, 2 मिनट पहले दिख रहा है, तो तब भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? एटमॉस्फेरिक Refraction. अब हम यही सारी चीजें वन बाय वन स्टडी करेंगे, दैट टू इन डिटेल, कि हाउ ऑल थिंग्स आर हैपनिंग. नाउ वील स्टार्ट विद द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. नाउ वील अंडरस्टैंड दिस एवरीवन. काइंडली पे अटेंशन. Star is the multiple things are responsible. First is the size of the star and second one is the position of the star. Stars are far above there in the atmosphere. Stars कहाँ होते हैं? बिल्कुल high above they are there in the atmosphere. So when the stars emit their light, तो stars are luminous object, ये सबको पता है. Stars कैसे objects होते हैं? Luminous, they have their own light. तो जब स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, स्टार लाइट को हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चा? स्टार लाइट को हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं. पॉइंट सोर्स मतलब वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सिंगल रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. क्योंकि वो क्यों कहाँ है? बहुत दूर है. इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. At infinite. यस, इनफाइनाइट तो नहीं, वो वेरी फार. ठीक है? इनफाइनाइट तो प्लैनेट भी होंगे. So since it is very small, very far, so the stars are considered to be as a point source of light. What do I mean by saying point of source of light? That when the starlight enters into the atmosphere, it enters as a ray of light. तो अब इस रे ऑफ लाइट के साथ क्या होगा? जब ये पूरा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हुए अर्थ तक पहुंच रही है, यहाँ पे आप मानो कि ये कौन सा लेवल है? सी लेवल. ये हाई अबव है. तो यहाँ पे जो एयर लेयर होगी वो कैसी होगी? रेयर. ठीक है? अब कहीं पे मॉइस्चर आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कैसी लेयर होगी? डेंसर. फिर कैसी हो सकती है? Rarer. फिर कैसी हो सकती है? Dense. डेंसर हो सकती है. तो अब होगा क्या? जब स्टार लाइट रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो वो कैसे दिखेगी? ब्राइट. बिकॉज रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कैसे हैं? कम. So it looks more brighter. When the starlight is entering into the denser medium, it looks dimmer. Again, in rarer medium, it looks brighter. And in denser medium, it looks Dimmer. dimmer.
तो अब ऐसा क्या होता है कि एक मीडियम में, एक एयर लेयर में क्या हो रहा है बच्चा, स्टारलाइट ब्राइट दिख रही है और एक में कैसी दिख रही है, डिम। तो वो ऑल्टरनेटिवली कैसे नजर आती है, इट सीम्स Twinkling. ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का क्या मतलब है, एट वन मोमेंट इट इज लुकिंग ब्राइटर, एट द अदर मोमेंट इट इज लुकिंग dimmer. Are you getting this? So what we have learned, that star is far away, so they are considered to be a point source. जैसे ही स्टारलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो एट द सेम टाइम वो लाइट कैसा इफेक्ट, कैसे मीडियम में एंटर करती है, रेयरर, Rarer. और सेम टाइम पे ही वो डेंसर Denser. में, राइट। सो अब रेयरर डेंसर, रेयरर डेंसर, तो जब रेयरर में है तो ब्राइट इफेक्ट इज नोटिस्ड, एंड जब डेंसर में है तो Dimmer. effect is noticed. So rarer and denser. What does that mean? It shows rarer में bright or dim. So consecutively brighter and dimmer, brighter and dimmer. What does that mean? It is showing Twinkling. the twinkling effect. समझ में आ गया everyone? Radhya, these days I am not getting you. Today I'll talk to Mama. I hardly find you looking at the screen. Mom, I was writing. Why you need to write when everything is there in the handbook? I just feel like I need to write some points that I feel I'll forget later. नो बच्चा, पहले समझो, आई गिव यू रिकैप विंडो ना। 50. Shall we read now? So whenever the question comes, you need to write down all these pointers. Not less, not more. यही सारे points लिखने हैं. So we'll weave a story. We'll do the mind mapping now. So twinkling of stars. Stars are very far away from the earth, right? Stars are very far away from the earth. So they appear to be a point source of light. जो जो चीजें मैं highlight कर रही हूँ, it must be there in your answer. Stars are very far away. They're considered to be a point source of light, or the atmosphere is constantly changing due to moving air layers. These air layers have different different densities, so they have different refractive indices. As star light passes through the atmosphere, it bends continuously due to what, atmospheric refraction. The amount of light entering, reaching our eyes keeps changing, so therefore the stars appear bright and dim again and again. And this effect of starlight is known as twinkling of stars. बहुत सिंपल सी चीज है, क्या है वो सिंपल सी चीज, सबसे पहले फार अवे है, दूसरा हम कैसा सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, Point source of light. एटमॉस्फेयर में कैसी लेयर्स होती हैं, डेंसर Different. Denser and rarer. denser layers create which effect, dimmer or brighter, Dimmer. dimmer, and rarer layers create which effect, Brighter. and the dimmer and brighter effect what, Twinkling of stars. yes, it creates the twinkling effect of stars. Are we clear now? अब ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में आता है, या तो आपको सिर्फ आएगा कि why do stars twinkle, या फिर आएगा why do planets do not twinkle, या फिर वो मर्ज करके दे देंगे why stars twinkles but planet do not. कमेंट, तो कंपैरिजन भी आ जाएगा. तो वन पार्ट वी हैव डन, हमने एक पार्ट कर लिया. विच पार्ट वी हैव कवर्ड, ट्विंकलिंग Twinkling ऑफ of स्टार्स. stars. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट why planets do not twinkle. अब planets को देखो, comparatively to stars they are much bigger in their size and they are quite closer to the earth surface. ठीक है, planets are much nearer to the earth and they appear bigger in size. तो अब जब ये पास में आ जाते हैं, say suppose this is a planet and this is earth, ठीक है, when they are closer, तो क्लोजर में कैसे होता है, अच्छा तुम्हें एक चीज से मैं समझाती हूँ. जैसे स्टार्स के केस में क्या था, दे आर फार्दर, तो बहुत दूर हो गए तो रेस कैसे आई, पैरेलल. तो पैरेलल रेस कैसे करेंगे एंटर, एक ही टाइम पे डेंसर मीडियम में और एक ही टाइम पे रेयरर मीडियम में. अब प्लैनेट्स कैसे हो गए, क्लोजर हो गए. क्लोजर ऑब्जेक्ट से कैसी रेज इमर्ज होती हैं, Diverging. यस. तो अब इसको ऐसे पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लो, कैसी रेज इमर्ज होती है, Diverging. तो planets are not luminous. Planets reflect the sunlight, right?
Yes, they do not emit their own light. They are non-luminous, but they reflect the sunlight. So why? How do they shine in the sky? So they are emerging the diverging rays. उनमें से कैसे rays emerge हो रहे हैं? Diverging rays. Divergent rays. They are going to cover the vast area of the. So in one part can be Srishti here. This can be having a denser layer, air layer, and this part may experience the rarer. Similarly, यहाँ पे से सपोज डेंसर आ गया होगा और यहाँ पे कैसा है रेयरर. तो वो जो बीम ऑफ लाइट है एट अ टाइम रेयरर और डेंसर में एंटर कर रही है, उसको कुछ पार्ट रेयरर में कर रहा है और कुछ पार्ट डेंसर में कर रहा है. तो जो रेयरर में कर रहा है वो ब्राइट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और जो डेंसर में कर रहा है वो डिमर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अगर आप इसको इस तरह से समझो, वी हैव अ बिग ट्यूबलाइट एंड अ स्मॉल बल्ब ऑफ द सेम कलर इन द रूम. So the light of the big tube light is going to overshadow the light of the small bulb. Yes or no? तो similarly, rarer layer में कैसा इफेक्ट आ रहा है? Bright. और denser layer में कैसा इफेक्ट आ रहा है? Dim. Dimmer. तो the bright effect is going to overshadow the dimmer effect. ब्राइट इफेक्ट क्या करेगा? डिमर इफेक्ट को ओवरशैडो कर देगा. तो ये पूरा लेयर में कैसा इफेक्ट क्रिएट होगा? ब्राइट. Bright. अब ऐसे ही यहाँ पे ये ब्राइट है, यहाँ पे डेंसर लेयर है और यहाँ दोनों जगह क्या है? रेयरर है से सपोज. तो यहाँ पे कौन से इफेक्ट आ गए? ब्राइट. और यहाँ पे कैसा आ गया? डिमर इफेक्ट आ गया. तो ब्राइट इफेक्ट ने डिमर को फिर से क्या कर दिया? ओवरशैडो. सो द लाइट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस सीम्स कांस्टेंट. इसीलिए प्लैनेट्स कैसे नजर नहीं आते? ट्विंकल Twinkling. करते हुए नजर नहीं आते. सो starlight was considered to be a point source of light, whereas planets light is considered to be a multiple source of light. ये बात किस किस को समझ आ गई? और जिसको नहीं आई वो अपनी क्वेरी पूछ लो. आ गई पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. Got it. कुछ नहीं समझ में आया वो जरूर पूछ लो, बिकॉज इसके ऊपर एक रीजनिंग आती है. आर वी क्लियर? तो कैन वी डू द माइंड मैपिंग? स्टार्स क्या है? फार. प्लैनेट्स कैसे हैं? नियर. स्टार लाइट कैसी है? पॉइंट Point सोर्स. source. और प्लैनेट लाइट कैसी है? Multiple मल्टीपल. source. तो पॉइंट सोर्स में डिमर इफेक्ट कहाँ क्रिएट होता है? Rarer. Layer. Denser. और ब्राइटर इफेक्ट कहाँ क्रिएट होता है? Layer में. Rarer. Alternative dimmer and brighter effect creates what? Twinkling. Of stars. Whereas in case of planets, what happened? The light The is brighter effect is constant. going to overshadow the dimmer effect. So constant light brightness is appeared of the planet from the sun. So planet acts like a collection of many point sources. So collection of many point sources को क्या बोलोगे? Multiple. Yes, multiple source of light. Atmospheric refraction affect the light of from different parts of planets differently. Dim light from one part is balanced by the bright light from the another part. पूरा explanation इस line के ऊपर टिका हुआ. अगर ये वाला पॉइंट आपका मिस हुआ तो टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स. ठीक है? एक क्या होना चाहिए कि ये बिगर है, क्लोजर है, मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट है और डिम इफेक्ट इज गोइंग टू बैलेंस बाय द brighter effect. The total brightness of the planet remains almost constant. That is why planets do not appear to be twinkling. So are we clear with this? समझ में आ गया? Everyone. Everyone. हाँ जी. मैम मेरे को थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट. मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है कि एक प्लैनेट में से मल्टीपल रेज निकल रही है और डाइवर्जिंग है. तो एक सोर्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया. तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट सोर्सेस. तो एक पार्ट में डिमर, तो एक में ब्राइटर, एक में डिमर. तो जहां ब्राइट है वो दोनों डिमर को बैलेंस कर देगा. तो इसीलिए जो प्लैनेट की लाइट होती है वो कैसी दिखती है? ऑलवेज कांस्टेंट. क्लियर बच्चा? यस मैम. Anybody else? Any doubt? चले आगे. 2 मिनट दे रही हूं, लिख लो. अपने अपने पॉइंट्स लिखो.
खुद से लिखो, एक माइंड मैपिंग हो जाएगी। 2 मिनट दे रही हूँ, चलो लिखो। एक साइड स्टार्स लिखो, अब लिखा करो आराध्या, आई विल गिव यू टाइम, बट फर्स्ट लिसन एंड देन राइट। यू वांट टू राइट, आई विल गिव यू विंडो। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी आप सेटलमेंट में ही टाइम ले रहे हो। जल्दी जल्दी लिखो, 2 मिनट में लिखो, फिर आगे चल रहे हैं। डन एवरीवन, राइटिंग इज डन। Yes, ma'am. आगे चलें। Shivika, your camera is off. Don't do this. Now let us understand the next effect of atmospheric refraction within the sky. Shall I start? Are you through with your writing? Anyone left? Hurry up. Oh, just everyone has done. Okay, the next effect is stars seems higher than they actually are. This effect is also created due to the atmospheric refraction. So this is a actual position of the star in the sky, and this one is the apparent position of the star in the sky. So apparent position of the star in the sky is higher than the actual position of the star. Why is it so? We'll understand. Light from the stars travel through the space. Space में कैसा रहता है? No air, vacuum. Vacuum. Yes. So as soon as it enters the Earth's surface, it starts experiencing different densities of the air layer. So atmosphere has layers of air with different density. एयर हायर इन द स्काई इज रेयरर, ये अभी हमने पढ़ा ना, जो ऊपर स्काई में एयर लेयर्स होती है वो कैसी होती है? रेयरर। Rarer. और अर्थ के सरफेस के पास जो एयर लेयर होती है, Denser. एयर लेयर आर डेंसर। So air higher in the sky is rarer and near the earth surface is denser. अब जैसे ही जो स्ट्रेट लाइट है, क्योंकि स्टार लाइट कैसी है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे ही स्ट्रेट लाइट पास करेगी थ्रू द लेयर्स, ये क्या कर जाएगी? बेंड। क्यों कर रही है ये बेंड? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, राइट। तो अब जो अर्थ सरफेस के पास डेंसर लेयर है, वो लाइट को ज्यादा बेंड कर देती है। वो क्या? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बेंडिंग भी कैसे होगी? ज्यादा होगी। देयर विल बी मोर बेंडिंग, एंड इस बेंडिंग की वजह से स्टार कैसा नजर आता है? Higher. हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। गॉट इट और नॉट? तो एवरी रीजन इज सेम, सारा रीजन सेम है। उसमें हमने क्या स्टडी किया था ट्विंकलिंग में? ब्राइटर और डिमर इफेक्ट। इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो स्टार लाइट है वो क्या कर रही है? बेंड कर रही है। क्यों कर रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सो व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, याद है हमने पढ़ा था, इट बेंड्स Bending टुवर्ड्स back द of नॉर्मल। light. जैसे थोड़ा उल्टा हो गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, और इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, डेंसर से रेयरर आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? So now moving ahead, this is superly important. Advanced sunrise and delayed sunset. इसमें 2 marker और 3 marker question आता है. I'll explain you with the figure. Is this clear? Is this clearly visible at the back of the class? दिख रहा है? अब देखो इसको समझते हैं. This is the horizon. This is the horizon. What is horizon, children? Who will tell me? Is equator horizon? The point Here, from the the sunrises.
Yes, the point. But what is it exactly? What is it exactly? Horizon is a place on the Earth's surface. It is a place where the sky and the sea meets. ये ऐसा place होता है जहाँ पे sky और sea seems to be meeting. They appears to be meeting. Right? That it doesn't mean actually, it appears to be meeting. So that is horizon. So we say that when the sun comes just above the horizon, the sun rises. And when the sun goes just below the horizon, the sun set. तो अब आपको सनराइज और सनसेट समझ में आया. सनराइज कब होगा? जब वो इस होराइजन से ऊपर आएगा. और सनसेट कब होगा? जब वो होराइजन से नीचे जाएगा. अब होराइजन कौन सा प्लेस है? It is a hypothetical line where the sky and the water sea seems to be meeting. The sky is all air and water is all liquid. So there is difference in the density of the two places. Yes or no? So whenever the light is entering into the two different density places, so what is it? What will it experience? Refraction. और बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट. अब इसको ध्यान से देखो. इसी डायग्राम से हम दोनों चीजें समझेंगे. सनराइज भी समझेंगे और सनसेट भी समझेंगे. पहले सनराइज समझते हैं. सो वी हैव टू पोजीशन. वी हैव पोजीशन ए and we have position B, and we have an hypothetical line which is known as horizon. Horizon. Yes, this is horizon. So what is happening? This is an eye of the observer which is looking from the sky. ठीक है. अब horizon में क्या हो रहा है? When the sun is at position A, position A is representing the actual position of the sun, which is just below the horizon. तो जब भी सन अपनी पोजीशन ए पर होगा, ठीक है, उसका सनलाइट बाहर जाएगा और वो बेंड होता नजर आएगा. तो जब भी लाइट बेंड करती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी पोजीशन से कैसा नजर आता है? ऊपर. अगर आपको Higher. याद हो वो एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल याद है? द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल seems to be little higher than it is actual depth, right? तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग sometimes slips also, right? And the coin wala example, if we are taking a glass tumbler and we are putting a coin into that, then what happens? The It coin seems to be near. higher. अब जब भी लाइट बेंड करती है तो वो कैसा इफेक्ट क्रिएट करती है? हायर एपरेंट पोजीशन का. तो अब सन कहां पर है? पोजीशन ए. पोजीशन ए कहां पर है? बिलो द होराइजन. पोजीशन ए कहां पर है? बिलो द होराइजन. तो सनलाइट विल क्रॉस द होराइजन. सन ही तो यहाँ पे है. तो जब सनलाइट क्रॉस करेगी तो जब भी सन पोजीशन ए पर होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो कहाँ दिखेगा? Above the Above the horizon. horizon. तो जब सन यहाँ पर है, दिख कहाँ पे रहा है? बी पोजीशन पे. When the sun is at position A, due to atmospheric refraction, the sun is appearing to be at position B. ये बात किस किस को क्लियर हो गई? इतना बात समझ में आया? अब when sun is looking at position B, A पर होते हुए भी जब वो पोजीशन B पर दिख रहा है, तो क्या सनराइज हो गया? क्या एक्चुअल सनराइज हो गया? So sunrise has not taken place. So it takes from coming from position A to B. It takes what time? It takes 2 minutes. 2 minutes. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? There is always a 2 minutes advance sunrise. There is always a 2 minutes advance sunrise. वो 2 minutes का advancement कहाँ से आ रहा है? The sun will rise actually when it comes at position B. But it looks at position B when it is at position A due to Atmospheric refraction. ये बात किसको समझ में आ गई? पक्का से आ गई कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि मैम क्या बोल रही है. जानवी नहीं आई बेटा? आ गई. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ओके चलो. अब सनराइज के टाइम पे ए से बी में आने में कितना टाइम लग रहा है? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Yes, so there is always a 2 minutes advance sunrise. तो जब हम सन को फर्स्ट ग्ली ऑफ सन जब हम स्काई में देखते हैं तो सन इज नॉट एक्चुअली अबव द होराइजन. द सन इज एग्जैक्टली just below the horizon and it seems to be there in the sky. हाँ, अब इसी चीज को सनसेट को लेके समझते. When the sun will set? When the sun will set? At which position the sun will set?
above the horizon. Below the Position horizon. A, इसके respect में जाओ. Position A. Position A. The sun will set when the sun will reach at position A. वही सेम चीज समझो. सनसेट हो चुका है. क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे आ गया? पोजिशन ए पे. और जब भी वो पोजिशन ए पर होगा तो इट इज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. और रिफ्रैक्शन ऑलवेज अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. सो पोजिशन ए पे भी उसको कहाँ दिखाई दे रहा है? पोजिशन बी पर. सन हैज कम एट पोजिशन ए and it appears to be at position B. The sun has already set. The sun has to go little more below. तो sun को जब sun यहाँ पे आएगा, let's say position C पर, then the sunlight is not able to cover this horizon, and it seems to be sunset. तो position B to A या A to B या A to C, one position change में कितना time लगता है? 2 minutes. 2 minutes. There's always a 2 minutes delay in sunset and 2 minutes advanced in sunrise. Sunrise. Any confusion? Any confusion? Whenever the sun is at position A, it appears to be at position B. Because at position A, the sun is exactly at the boundary of two media, right? That is horizon, absolutely right. And whenever it is at the boundary of two media, it will undergo atmospheric refraction, due to which it appears to be at higher position. And what is that higher position? Always B. ठीक है. Above the horizon. तो जब वो सी पर होगा तो वो कहाँ दिखेगा? ए. अब A. ए तो हमें दिख नहीं रही. ए क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ए कहाँ है? बिलो द होराइजन. हाँ जी. हाँ, एक्चुअल नहीं होता वो जब तक सन हमें स्काई में दिख रहा है. तो अगर आपको सनसेट का टाइम दे रखा है 5:32, या अभी आजकल समर्स चल रहे हैं तो इट इज 6:30 या फिर 7, 8 तो नहीं होता लेट. हाँ, सो इट इज 6:30 या 6:32. तो 6:30 पे एग्जैक्टली इट इज नॉट सनसेट. 6:32, so 2 minutes delay. It is only exactly 2 minutes delay, not 3 minutes, not 4 minutes, not 1 minute. So it is always an advancement of, yes. तो पूरे डे में कितने मिनट्स का लैप्स आ गया? 4. 4 minutes. 2 minutes for the rise and 2 minutes for the set. So 2 plus 2, what is the total delay? 4 minutes. Are we clear? इसके ऊपर क्वेश्चन होता, जैसे रेनबो वाला मैं बोल रही थी ना, रेनबो वाला क्वेश्चन होता था, एक इसके ऊपर बहुत पूछा जाता. और जब भी आपको एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट आएगा, समृद्धि एंड प्रांजल, whenever you have advanced sunrise and delayed sunset, then you always need to make this figure. You always need to make this figure. इस फिगर को बिना बनाए नहीं ये क्वेश्चन करोगे. So we can see that the sun is about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. अब ये क्यों होता है? This happens due to atmospheric refraction. बबीता जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को चेक करो, रायन, समृद्धि एंड प्रांजल. Earth atmosphere bends the sun's light towards the earth. Due to this bending, the sun appears slightly above the actual position below the horizon. Our eyes see the sun straight in the straight direction from which the light enters the eye. Therefore, the sun is visible even when it is actually below the horizon. Atmospheric refraction increases the duration of the daytime. By what time? By 4 minutes. 4 minutes. Two. Right? 2 minutes for sunrise and 2 minutes for sunset. Sunset. क्लियर हो रहा है? सारे इफेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं? अभी तक हमने 4 इफेक्ट्स पढ़े हैं. कौन कौन सा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, नॉन ट्विंकलिंग ऑफ Planet. of the star and advanced sunrise and sunset. अब पेन के साथ खेलते हुए नजर आया ना, पिटाई हो जाए. बिल्कुल लॉस्ट बैठे हुए. और मैंने पापा को बुला लिया तो वो यहीं से पिटाई करते हुए लेकर जाए. अच्छा लगेगा? तो क्यों नहीं दिमाग है पढ़ाई में जब सब बच्चे पढ़ रहे हैं? कहाँ खोए हुए हो आप? कहाँ खोए हुए हो? Okay, we have a set of questions. I told you we'll be doing it in the end. First, we'll be finishing the explanation.
ठीक है, अगर हमें आज टाइम मिला तो आज क्लास में करेंगे, नहीं तो आई एम राइटिंग इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आई विल ट्राई टू कवर। Now next is scattering of light. अब why does the sky appears blue? हमें ये पढ़ना है. So everyone remembers the blue component and the red component of the white light. Everyone remembers the blue component has the less wavelength and the red component has the higher More wavelength. ये सबको high याद wave. है? Everyone remembers. Okay. So scattering of light means to throw the light in various random directions. जैसे सनलाइट एंटर कर रही है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो स्कैटर करेगी, और स्कैटर वही चीज कर सकते हैं जिसका स्पीड कम हो। मैं लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर रही थी। तो व्हाइट लाइट में से किस कंपोनेंट का स्पीड कम होता है? ब्लू Blue कंपोनेंट। light. ब्लू ब्लू लाइट नहीं बोलेंगे, ब्लू कंपोनेंट बोलेंगे। The white light comprises of altogether 7 components. So उसको majorly हम 2 में divide कर देते हैं, the reds and the blues. So light is scattered when it falls on the various type of suspended particles in its path. Suspended का क्या मतलब होता है बच्चा? Floating. Suspended का क्या मतलब होता है? Floating. अब ये suspended particles हैं क्या भाई, ये समझते हैं. What is it? These can be the air molecules, or these can be the dust particles. ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। जैसे एयर में 21% ऑक्सीजन रहता है, तो O2 बहुत सारा रहता होगा और N2 बहुत सारा रहता होगा, 78% रहता है ना हमारा। तो ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स आर द कंसीडर्ड एज स्मॉलर पार्टिकल्स and the dust particles are considered as the larger particles. The fate of the light changes when it strikes the air molecules, and again it changes when it strikes the dust particles. one. We'll understand one by one. तो अभी के लिए आप क्या समझेंगे? Depending upon the size of particles, the scattering can be of white light as such, or of the colored lights which make up the one white sunlight. तो scattering या तो पूरे white light का हो जाएगा या फिर उसके colored component का होगा। ठीक है, अब क्या होता है? Dust particles कहाँ है? एटमॉस्फेयर में नीचे की साइड है। अगर आप ऊपर जाते जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर में, टोपोस्फेयर में, क्या वहां डस्ट पार्टिकल्स हैं? वहां डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वहां मेजरली क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। Air molecule. तो जब भी व्हाइट लाइट एयर मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करती है, एयर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो रेड कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं कर पाते। वो किसको इफेक्ट करते हैं? ब्लू Blue कंपोनेंट component. को। तो ब्लू कंपोनेंट उससे एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करके क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है, जिसकी वजह से स्काई कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। द स्काई सीम्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया बताओ? सनलाइट कैसी लाइट होती है? व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट में कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? मेजरली रेड होते हैं और ब्लू होते हैं। ठीक है, अब ब्लू कंपोनेंट्स की वेवलेंथ कैसी होती है बच्चे? कम होती है। तो स्पीड भी क्या है, मतलब कम है, तो उसको रोका जा सकता है। तो छोटे मॉलिक्यूल्स उसको रोक सकते हैं। रोक के मतलब जैसे ही वो ब्लू कंपोनेंट एयर मॉलिक्यूल्स की स्ट्राइक करेगा, कुछ इधर भागेगा कुछ उधर भागेगा। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ज्यादा है या एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है? Air molecules. एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, राइट? तो जो चीज ज्यादा होगी उसका इफेक्ट ज्यादा एम्पलीफाई होगा। तो व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स आर मोर, तो स्कैटरिंग ऑफ व्हिच कंपोनेंट विल बी मोर? ब्लू कंपोनेंट be more. Blue So when component. the scattering of blue component will be more, how does the sky looks? How does it appears? It appears. Are you getting this? समझ में Ma'am, आया? but in afternoon the sky appears to be white. I am coming to that. Why in afternoon it appears white? Because I will come to that. I will explain it with the position of the sun. Sun का position कैसे change होता है? In afternoon the sun is exactly overhead. तो overhead हो जाता है तो वो सारी लाइट एक साथ फॉल करती है, तो स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होती, तो जिसकी वजह से स्काई कैसा दिखता है? व्हाइट।
It is more of yellowish white. Huh? Can you see the two effects? The sky is blue, but the sky is red and orange during the sunset and sunrise. Sunset के time पे exactly sky ऐसा होता है. और during daytime, how does the sky looks? Blue. Blue. अब बहुत सारे effects दिखते हैं, right? There are the Norways, उसमें pink skies भी होते हैं. Yes, ma'am. Pink effect amplify होता है, तो बहुत सारे reasons होते हैं. There are multiple reasons which are collectively contributing to the appearance of sky. Now we'll understand. Yes. पहले आप ये समझो, फिर आप समझोगे. Tyndall effect everyone knows. I'll come to that later. पहले हम जो कर रहे थे उस पे चलते हैं. अभी हम क्या पढ़ रहे थे? The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. कौन से दो suspended particles मैंने आपको बताए थे? एक मैंने आपको Air molecules and dust particles. air molecules, that is N2O2, and the dust particle. Suspended मतलब floating. Atmosphere में float कर रहे हैं. Dust particles कर रहे हैं और O2 और N2 कर रहे हैं. Dust particles थोड़े बड़े साइज के होते हैं और air molecules छोटे साइज के होते हैं. Air molecules ज्यादा होते हैं, dust particles कम होते हैं. तो सारी चीजों को हम इफेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं. और एटमॉस्फेयर कैसा है? हेट्रोजीनियस. कहाँ है यार? कहीं यहाँ तो नहीं है. Earth atmosphere is heterogeneous mixture of minute particles. इसके ऊपर भी पक्का एक क्वेश्चन रहता है. ये टॉपिक आपको जरूर अच्छे से समझना है. Fate of light depends upon the type of particles it is striking upon. लाइट कैसे बिहेव करेगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि लाइट किससे जाके टकरा रही है, लाइट किसको स्ट्राइक कर रही है. इज लाइट स्ट्राइकिंग एयर मॉलिक्यूल्स or the light is striking the suspended dust particles? Are you getting this? So now let us understand Earth atmosphere कैसा है बच्चा? Earth atmosphere is heterogeneous mixture of minute particles. Heterogeneous क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं और अर्थ एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल. हेट्रोजीनियस मिक्सचर याद है, जिसके पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो, जिसको हम विजिबली देख सकें, यूनिफॉर्म ना हो कॉम्पोजिशन. तो क्या सारी एयर लेयर्स में डस्ट पार्टिकल होता है? नो, राइट. डस्ट पार्टिकल्स का साइज भी 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है. विल बी एबल टू विटनेस इट विद आवर नेकेड आइज. तो क्या हम बोल सकते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? यस और नो? तो फेट ऑफ सनलाइट striking the suspended atmospheric particles depend upon two things. One is the wavelength of the particle, second is the size of the particle. तो पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा किसका होता है? एयर मॉलिक्यूल्स का. और साइज किसका बड़ा होता है? Dust particles. फेट ऑफ लाइट मतलब लाइट के साथ आगे चल के होना क्या है? समझ रहे हो? फेट ऑफ लाइट का क्या मतलब है? लाइट के साथ आगे चल के होना क्या है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. एंड व्हाट आर दोस टू थिंग्स? Wavelength and size of the particle. Wavelength and size of particles. ठीक है. अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन यूजिंग अ फ्लो चार्ट. टू फेट्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट. So dust particles and water droplets are suspended in the atmosphere are much larger in wavelength than the range of visible light. क्या मतलब है इसका? जो बड़े पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो दो माने गए हैं. व्हाट आर दोस टू बिगर पार्टिकल्स? वन इज द डस्ट पार्टिकल्स एंड सेकंड वन इज द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम इन दोनों की वेवलेंथ चेक करें, इन दोनों की वेवलेंथ व्हाइट लाइट की पूरी रेंज से ज्यादा है. Are you getting this? The wavelength of dust particles and the wavelength of water molecule is even more than the wavelength of red light. ये बात किसको समझ में आ गया? रेड कंपोनेंट का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, उससे भी बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? डस्ट पार्टिकल्स और water ये droplets. समझ में आया? अब आगे चलो. व्हाइट लाइट जब हिट करेगी किसको जाके? लार्जर पार्टिकल्स. अब लार्जर पार्टिकल से क्या समझ रहे हो? Dust particles and water drops. अब क्या होगा? It get reflected
और स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। भाई ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, ये या तो वाटर के साथ जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा किसके जैसे एक्ट करते हैं, मिरर के जैसे एक्ट करेंगे, वन साइडेड, राइट। तो वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी और स्कैटर, स्कैटर किस केस में होगी, डस्ट पार्टिकल्स, और रिफ्लेक्ट किसके केस में होगी, Water का. So there are two fate here itself. When it is striking the dust particles, it is going to scatter, and when it is striking the water molecules, it is going to reflect. ये बात किस किस को समझ में आ गई? लेक में, पॉन्ड में जो वाटर होता है वो मिरर के जैसे एक्ट करता है। आर वी एबल टू सी आवर इमेज? तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में वो स्टैग्नेंट होते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं वो, एक राइट, वो स्टैग्नेंट होते हैं एक पोजीशन पे। तो जब वो लाइट किसको हिट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। बट अगर वो लाइट रे किसको जाके हिट कर गए, डस्ट पार्टिकल को, तो वो स्कैटर। Scatter. ये बात समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई। आगे चलो। डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, मोह different colors of white light are reflected by dust and water particles. White light scattered so much that it also appears white. ये इतना ज्यादा स्कैटर कर जाती है कि वो दिखने में कैसी लगती है, व्हाइट लगती है। आर यू गेटिंग दिस? कैसी लगती है, व्हाइट लगती है। तो व्हाट इज द फेट ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द लार्जर पार्टिकल्स? द व्हाइट लाइट विल White light. be white only due to too much of scattering. Scattering. ये बात किस किस को क्लियर है? ये पूछी जाती है एमसीक्यूज में, और पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं। They will puzzle you with one word. Last year I've seen the question based on this topic multiple times during pre-board. तो इसको स्टार मार्क कर लेना। Now let us understand the second fate of light when the light strikes the air molecules. So what are the air molecules present in the atmosphere, children? N2 and O2. O2, they are present in the atmosphere and they are smaller than the wavelength range of the visible light. Are you getting this? मतलब इनका जो wavelength है वो किससे भी छोटा है, ब्लू कंपोनेंट से, Blue component. राइट। तो अगर हम पूरा व्हाइट लाइट देखेंगे तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, विबग्योर का, वॉयलेट का, और सबसे हाईएस्ट किसका होता है, रेड का। Red. Red. पार्टिकल्स का वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा है, और वो एयर मॉलिक्यूल्स का वेवलेंथ वॉयलेट से भी, Violet से भी कम है. ठीक है। तो अब होगा क्या, व्हाइट लाइट जब किसको हिट कर रही है, स्मॉलर एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसको हिट कर रही है बच्चा, स्मॉलर एयर मॉलिक्यूल्स को हिट कर रही है। तो लोअर वेवलेंथ मतलब क्या, ब्लूज आर स्कैटर्ड मोर बाय एयर मॉलिक्यूल्स। स्काई इज ब्लू वाला एग्जांपल याद है, स्काई ऊपर से ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे लाइट किससे स्कैटर कर रही है, ऊपर, बहुत ऊपर जाके तो नहीं है, एयर मॉलिक्यूल, Air molecule. तो एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक कर रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला कंपोनेंट कौन सा है, ब्लू। Blue. तो फ्लाइट को नहीं रोक सकते हो तो सीधा चली जाएगी, साइकिल को रोक सकते हो, तो फ्लाइट कौन है यहाँ पे, रेड कंपोनेंट, साइकिल कौन है, Blue component. component। तो ब्लू कंपोनेंट को एयर मॉलिक्यूल्स रोक के क्या कर देंगे, स्कैटर। तो जब ब्लू कंपोनेंट स्कैटर होगा तो स्काई कैसा नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। सो हायर वेवलेंथ जो होते हैं रेड्स के आर स्कैटर्ड मच लेस। क्यों, क्योंकि अनकंट्रोलेबल है, एयर मॉलिक्यूल्स के हाथ ये नहीं आ सकते। So white light not scattered much. Air molecules mainly scattered with shades in the atmosphere. Blue. Blue. तो स्काई का ब्लू दिखना मतलब लाइट का किससे स्ट्राइक होके वापस जाना, एयर मॉलिक्यूल जाना। ये बात किसको समझ आ रही है, पक्का, एवरीवन, एवरीवन। अब ऐसा सनराइज और सनसेट के टाइम अलग क्या हो रहा है, ब्लू कंपोनेंट इतना ज्यादा स्कैटर हो जाता है कि रेड कंपोनेंट हमारी आईज तक नहीं पहुंचता, स्कैटरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है। तो रेड कंपोनेंट क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर। शाम को क्यों नहीं होता ऐसा और मॉर्निंग में ऐसा क्यों नहीं होता, अब ये समझ, ठीक है। ब्लू कंपोनेंट का वेवलेंथ क्या है, लेस, और Less. रेड कंपोनेंट का वेवलेंथ क्या है, हाई। High. की बात को समझते हैं।
Let us understand. Sky is blue आप समझ चुके हो. I want to explain you. Wait. पहले ये समझते हैं. Why sun appears red at sunrise and sunset? We'll understand with this figure. ये figure आपके handbook में भी है. और white क्यों दिखता है day में, हम यहीं से समझे. ठीक है? So this is the position of the sun. Everyone pay attention on the figure. Online students, everyone here pay attention. So this line is in, these are the observers from the surface of the earth. यही सब में लगे रहते हो ना, we disrupt. You should wait for the break. When I stop speaking, then you can have what? Everybody. If you're having your own bottle, you can have it, but do not disturb others. So we have the multiple observers, like we all are observers, right? So what is happening? At the sunrise, the sun is near horizon. Do we know this? We know this कि sunrise और sunset के time पर sun कहाँ है? Near the horizon. Near the horizon. और horizon position अर्थ से longest distance पर होती है. Horizon position अर्थ से longest distance पर होती है. अब ऐसे चलते जाओ. Distance बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कम हो रहा है बेटा, बढ़ नहीं रहा. डिस्टेंस कम हो रहा है. डायगोनली डिस्टेंस ज्यादा होता है और ओवरहेड पे आके क्या हो जाता है? बिल्कुल लेस हो जाता है. और यहाँ पे भी क्या होता है? फिर से डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है. यस और नो? और यहाँ पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम. आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे चेक कर सकते. अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, जस्ट चेक आउट, ड्रॉ द लाइंस. डिस्टेंस is maximum at the horizon and keeps on decreasing when the sun is moving overhead. Is this figure not in your handbook? हाँ. The figure is there in your handbook. Pencil से चलाओ जरा. देखो distance कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। From horizon to overhead, I am saying. From horizon Decreasing. to overhead. कम The हो distance is decreasing. Have you checked this? Have you checked this? I've seen a glee of doubt on your faces. तो तभी मैंने बोला hands on check कर लो. Check किया सबने, online, offline. Is the distance decreasing when the sun is moving from horizon to overhead? Now, Overhead. yes. So at the horizon, the sun is at the maximum distance. अब मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा कंपोनेंट कवर कर सकता है? जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो. रेड। रेड. तो जब सन होराइजन पर होता है तो सिर्फ रेड कंपोनेंट अर्थ तक पहुंच पाता है. जो ब्लू कंपोनेंट होता है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता. तो जो कंपोनेंट अर्थ तक ट्रैवल करेगा वही हमें नजर आएगा. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर विच कंपोनेंट ऑफ लाइट कैन ट्रैवल? ओनली रेड. Why? Because it has the maximum wavelength. तो यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल दे रही थी ना, यहाँ से लंदन जाना तो फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी. तो वो फ्लाइट मोड किसके पास है? रेड के पास है. तो रेड ही वहां तक पहुंच सकता है. ब्लू कंपोनेंट विल गेट लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर. ये बात किस किस को समझ आ गई? So as the sun, okay, great. As the sun is moving from horizon to overhead. अब ये वाला जब जर्नी कवर कर रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. अब जैसे जैसे सन राइज करता जाता है तो वैसे वैसे स्काई कैसा नजर आता है? ब्लू होता नजर. क्योंकि सन इज कमिंग क्लोजर टू द अर्थ सरफेस. और सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? एट आफ्टर Overhead. नून. तो सबसे ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है उस टाइम पे? Sun is overhead. overhead. Yes. तो sun is at the least distance, shorter distance पे आ गया. तो little of blue color scattered. तो sun कैसा दिखने लगता है? White. तो इतने short distance पर blue color भी scatter नहीं हो पाता. तो sun की light कैसी होती है, खुद बताओ? White. White. व्हाइट लाइट होती है. तो इसीलिए जब सन ओवरहेड होता है तो कैसा दिखता है स्काई? व्हाइट दिखता है. सन इन पोजीशंस पे होता है तो कैसा दिखता है? ब्लू. Blue. जब होराइजन पे होता है तो रेड. Red. यहाँ पे कैसा है? वापस से इवनिंग टाइम आएगा, नून के बाद 1 2 3. तो ये क्या हो जाएगा?
ब्लू। अब Blue. जैसे सनसेट वाला टाइम है तो ये कैसा हो जाएगा? Red. Red. The reason now. You know the reason now. So here only the red component will only be able to travel because of the much larger distance. ये किस किस को clear हो गया now? Please give me. It's clear. Okay, thank you. Anushka not clear yet? नहीं जबरदस्ती नहीं बोलना. पक्का? पक्का से? मैक्सिमम डिस्टेंस रेड लाइट कवर कर पाएगी तो हॉराइजन पे सन का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अर्थ से. ठीक है, तो सिर्फ रेड लाइट ही सन से यहाँ तक पहुंच पाती है. ब्लू लाइट क्या हो जाती है? एस्केप इन द Blue. एटमॉस्फेयर. एस्केप. तो जो चीज हमारे तक पहुंचेगी वही तो देखोगे, वही तो हमारी आईज विटनेस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगी. तो अर्थ तक कौन सा कंपोनेंट पहुंचा व्हाइट लाइट का? रेड. तो सनसाइड सनराइज के टाइम पे रेड कलर. और एज द सन इज कमिंग क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, Blue. due to striking with the air molecules, the sky appears blue. Example, at the overhead, the sun is White. at the short distance की वजह से वो थोड़ा सा क्या हो गया? क्लोजर हो गया. तो डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सब आ गए पिक्चर में. तो वो क्या हो गया? ब्लू लाइट स्कैटर नहीं हुई. ये कैसी दिख रही है लाइट? White. दिख रही है. फिर से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया. तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया तो एयर मॉलिक्यूल्स पिक्चर में आ गए. अब एयर मॉलिक्यूल्स पिक्चर में आ गए तो कौन सा कलर दिख रहा है? Blue. और हॉराइजन पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया तो Red. हो गया. दिमाग में क्लियर? अगर ये फिगर क्लियर है तो सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर है. अगर ये फिगर नहीं आती तो फिर गड़बड़ होगी. तो इस वाली फिगर पे भी आपको अच्छे से काम करना है. तो इन फिगर्स को मार्क करो जो आपको प्रिपेयर करनी है. मैम ब्लू लाइट्स क्या होती है? ब्लू आर द कंपोनेंट ऑफ लाइट. ये पूछ रहा पूरा राम जी कौन के रामायण खत्म होने के बाद. व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स होते हैं. विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जब ये सारे ब्लू वाले शेड्स मिक्स हो जाते हैं तो जो स्काई ब्लू कलर होता है वो नजर आता है. तो दैट इज अ ब्लू लाइट जिसका वेवलेंथ कम होता है. ठीक है, जिसका वेवलेंथ क्या होता है? कम. तो जब ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, जब सन पास में होता है तो ब्लू लाइट स्कैटर करती है. जो सबसे दूर होता है तो कौन सी लाइट पहुंच पाती है? रेड. आपने कभी नोटिस किया है कि हम जब सन डे टाइम में देखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू विटनेस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द सन. और सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर शेप दिखता है. कोई स्कैटरिंग नहीं होती. तो इससे क्या पता चल रहा है कि रेड लाइट को स्कैटर नहीं किया जा सकता. इसीलिए सारे डेंजर सिग्नल्स भी किसमें होते हैं? Red. एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस किस कलर से लिखा होता है? Red. जो भी चीज रेड से लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है? बिकॉज द रेड कंपोनेंट ऑफ लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट एक्सपीरियंस द लीस्ट स्कैटरिंग और नो स्कैटरिंग एट ऑल. ये बात समझ में आई? तो यही, ये क्या है? ये बात समझ में आई सबको? पक्का से? प्रांजल, इज दिस क्लियर? ये पूछा जाएगा सिग्नल्स रेड क्यों है. अब इसमें एक पीछे स्लाइड आई थी. Why danger signals are red? क्यों होते हैं danger signals are red? Red color Red has the maximum wavelength. yes, Cannot be scattered. नहीं है. दो चीजें, मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट स्कैटरिंग. मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट स्कैटरिंग. ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपनी मर्जी का मालिक. राइट, यू कैन नॉट कंट्रोल द रेड कंपोनेंट and we cannot scatter it. It goes extremely straight. Extremely straight. Are we getting this? हमने देखा बीच में एक ट्रेंड आया था. I don't know you were young or not. People have started putting the blue light in the vehicles. हाँ हाँ, ये अब मुझे याद नहीं है. इट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज यंग, या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. वो एकदम ब्लू लाइट लगा देते थे एंड ड्यू टू विच द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हैड स्टार्टेड इंक्रीजिंग. कैन यू टेल मी व्हाई? Because blue light has more scattering.
It scatters the most. Very good, Narayani and Aradhya. Yes. और red light scatters the least. एम्बुलेंस पे कौन सा कलर होता है? रेड कलर से लिखा रहता है. जितने भी होर्डिंग्स होते हैं ऑन रोड्स जिसपे कुछ कुछ मैसेजेस चल रहे होते हैं वो किस कलर से चल रहे होते हैं? रेड. अगर नहीं 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 रेड ही होते हैं. नहीं बेटा रेड ही होते हैं. मैक्सिमम रेड होते हैं. And why? To capture the attention. Second, it scatters the least. आप येलो लाइट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों हम यहाँ पे रेड लाइट नहीं लगाते? न्यू नाइट बल्ब में यूजुअली पीपल प्रेफर अरे वो हाँ मतलब मोस्टली रेड. एक डेम मुझे मतलब आई रिमेम्बर देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस नाउ बट प्रेफरेबली व्हाई? बिकॉज इट scatters the least. It scatters the least. And when you put the white light, why do we put the white light? It scatters the Scatters most. It scatters most. So यहाँ पे क्या आपको बताना है? Majorly the red component has the longer wavelength and it scatters least. Due to this, the red light can be seen in the same color even from a considerable distance. Why sky appears black to the astronauts? No atmosphere, no refraction, no scattering. So it appears dark black from the outside. So outer space has no atmosphere. So sunlight cannot be scattered in the space. No scattering of light reaches the eye. So the sky appears dark and black to the astronauts. हमने और तो कुछ पीछे नहीं छोड़ी. This we know. अच्छा ये ना एक एक्सपेरिमेंट है. It is there. It is an experiment. We have taken a colloidal solution. What is this? इसे क्यों खेल रहे हो? Keep it aside. Okay. So we have a colloidal solution. Colloidal solution कैसे बना सकते हैं? Soap solution. ठीक है? Soap solution में we are going to put the bulb overhead as a sun. So it is going to scatter the maximum light. Why? कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है? पार्टिकल्स हैं. इट इज हेटेरोजेनियस, medium. होमोजीनियस. तो उसमें हमें पार्टिकल्स मिल जाएंगे. तो वाटर भी है और हमें पार्टिकल्स भी मिल गए. तो क्या हो गया? इट इज गोइंग टू स्कैटर द मोस्ट. राइट. एंड वाटर में बहुत सारा ऑक्सीजन भी रहता है तो एयर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं. So it is going to scatter the little of the blue light scattered here and blue sky from the scattered light. Now we left with something. I think they have covered. Excuse me, मैम. Yes, beta. मैम वो सॉल्यूशन में हमने colloidal solution क्यों लिया है? सिर्फ like heterogeneous भी ले सकते हैं सस्पेंशन कोई. Beta, colloidal is heterogeneous, Ryan. Colloidal is heterogeneous. It appears to be homogeneous. The particles, भूल गए 9th. Yes मैम. Yes मैम, पर मैम सस्पेंशन में तो ले सकते हैं. सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा. तो हमें वी हैव टू टेक द सूटेबल सॉल्यूशन. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर कोलाइडल. ओके. So why the sun appears white when it is overhead? ऐसा दिखता है स्काई आपको? Can you see the picture? दिख रहा है? Okay, it's white base with a white picture. So yes, the clouds are there. It appears white also. At overhead, the sun is closest. So blue light भी scatter नहीं होती. So the white light reaches our eye. Only the small amount of blue light is scattered. Most of the colors of the white light reaches our eyes together. That is why the sun appears white at noon. So with this, we have finished the chapter. So हमारी 50% physics is complete in the month of May. In the month of August, we will be able to finish our 100% physics. अगस्त तक मैं आपकी पूरी फिजिक्स खत्म करवा दूं. फिजिक्स तो चलेगी ना यार. मतलब फिजिक्स खत्म हो जाएगी, केमिस्ट्री भी जाएगी, बायो भी जाएगी. बायो गोज टिल एंड. बायो गोज टिल एंड. केमिस्ट्री गोज टिल अक्टूबर. बायो में अभी रिप्रोडक्शन है, लेंथीएस्ट चैप्टर. अभी हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है. बायो के चैप्टर्स आर प्रीटी लेंथी. नाउ आई नीड टू काउंट द क्लासेस. लिसन, 31st, let me put this on hold.